Good day, dear students. Today we are going to go with our lecture number 11 of Total Quality Management. Now, in the previous lecture we were discussing about how Deming wanted to implement the quality rules and what points he thought that were important to use. Now we continue on with that, and we're still speaking about the way Deming had given the process of total quality management. So Deming's profound system of knowledge. Now when we continue on with that, the fourth part of his system, like we spoke about the previous three parts in the previous lecture. Now we're on the fourth part. So this is a continuation of that. The fourth part of his system of profound knowledge is psychology. So from the earliest days of his career, he had linked the rigorous application of statistical analysis with good human relations. So fourth part इसका जो है knowledge का वो psychology है, ठीक है, human psychology. Now उसके earliest days से उसने अपने career में एक चीज़ ये चीज़ की कि statistical analysis जो है human relations के साथ use करने का जो है ना start किया. Now there are at the heart of his philosophy and are what makes TQM so powerful. So the relation of how humans would react psychologically to the system of total quality management, it's basically the power by which total quality management can be run. Now Deming was particularly concerned with employee motivation and the importance of pride, joy, and job satisfaction to the delivery of quality goods and services. In this book, he reiterates a major theme of his. So, Deming का मकसद जो था main, जो उसका point था, जो emphasize वो करना चाह रहा था बार बार, वो था employee motivation. अब motivation कैसे आती है कि आपकी job satisfaction हो, आपका environment comfortable हो, and when you're working, you should feel pride in it. You should feel happiness in working. आपकी any restrictions ऐसे ना हो, आपका वर्क एनवायरनमेंट या आपकी ड्यूटीज़ ऐसी असाइंड हों कि आपका आप प्रॉपर तरीके से अपने सर्विसेज जो है वो रेंडर कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स ऑफ इट. नाउ ही रोट अ बुक रिगार्डिंग दिस. सो ही बिलीव दैट मेनी एम्प्लॉई रिवॉर्ड सिस्टम्स आर कॉन्ट्रेरी टू सिस्टम्स थिंकिंग एंड हिंडर रादर देन हेल्प मोरल. सो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर एम्प्लॉइज़ को इंडिविजुअल तरीके से उनकी एवेल्युएशन की जाए या उनको रिवॉर्ड सेट हो या they would get some benefits from it, then on an individual that would create competition within the working environment. And they would just try to work hard just to get into the good books of their heads, but truly they wouldn't be so happy about their job. And that competition would resist in teamwork. यानी लोग टीम वर्क में काम करने के बजाय एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते कि किसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो, ताकि वो हायर अथॉरिटीज़ या लीडर्स या मैनेजर्स की गुड बुक्स में आ सकें. ना उसके मुताबिक जो है सिस्टम जो था रिवॉर्ड करने का, दैट वाज लाइक सिस्टम्स, यानी इट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग the morale, yeah, helping the employees improve their work quality, वो उस चीज़ को रुकावट डाल रही थी उसमें. Now he also disliked organizational cultures that are based on fear and believed that these are destructive to the organization and to the individual. Now we discussed also in the previous lecture that sometimes the heads or the senior management, they have a fear of losing empowerment. Now that fear is from what prevents them from giving individual empowerment to the employees to for quality checks. So keeping that power with themselves, that means that they are afraid that if they lose that power, then, and if they give power to the individual employees or the staff, then they would maybe excel in some way. So that fear is very destructive. That fear isn't very helping in an organization.
an organization has to work on a system in which all of the staff in the institution, in the employees, the members of that organization, they all have to work as a team to improve the quality measures so that TQM, when applied, can be beneficial. Now, we speak of the other guru, who also was one of the pioneers of the quality movement. So he was born, Joseph Juran. He was born in 1904. Now, as I've told you previously also, that in a previous lecture we have briefly read about all of these people who have contributed to the total quality management system. But now in this two lectures we are trying to emphasize in more detail what their work was specifically and what they contributed. So born in 1904, Dr. Joseph Juran, along with Deming, is the other main veteran pioneer of the quality revolution. So he was one other person with Deming who was one of the pioneers जिन्होंने total quality movement के system या quality का revolution start किया organizations में, institutions में, और एक रिवील किया एक चीज़ दुनिया को कि क्वालिटी इम्प्रूव करने से ही वो अपने ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में बेहतरी ला सकते हैं. Now, like Deming, he was until recently more highly regarded in Japan than in his native United States. So Deming की तरह जुरान का भी यही प्रॉब्लम था कि जापान ने उसको पहले रिकॉग्नाइज किया, जापान ने उनको पहले उनके आइडियाज़ को काम में लाना शुरू किया निस्बतन के यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ से वो बिलोंग करते थे. बिकॉज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, देयर वाज अ सिस्टम, द organizations or the businesses, they worked on a very traditional, old-fashioned method in which they didn't really care about improving quality, or the quality improvement system, they didn't want to implement that. So they didn't do that till the late 1980s. So in 81, the Emperor of Japan awarded him the prestigious Second Order of the Sacred Treasure, the highest order awarded to non-Japanese. So 1981 में Emperor of Japan ने उसको एक Sacred Treasure का order जो है वो एक उनको award किया ये title, and it's the second highest जो non-Japanese को usually वो नहीं देते ऐसे awards. So this was the second highest award that they did give, and that was because he had worked and helped the industry in Japan to improve. Now, Juran is the author and the editor of a number of books. So Deming ने जिस तरह books लिखी उसी तरह Juran ने भी books बहुत publish की. Now उनकी books में से जो है including Juran's Quality Control Handbook was one, Juran on Planning for Quality, and Juran on Leadership for Quality. So once again, his thoughts were very similar to what Deming's was. In the first edition now, Quality Control Handbook, published in the 1950s, he used his now famous words, "There is gold in the mine." So उन्होंने ये words use किए. That means like this was just an example, like that there was so much to do in the sector of the businesses and industries. Now, he is probably most renowned for coining the phrase fitness for use or purpose. So जुरान ने ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया, जो जिसके मुताबिक इनइक्वालिटी चेक्स हो रहे थे, फिटनेस फॉर यूज और पर्पस. अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में. द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आइडिया is that a product or service can meet its specification and yet not be fit for its purpose. So importance इस आइडिया का क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है या सर्विस है जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इट वुड मीट इट्स स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफाइड की गई हैं कि उसकी ये लाइफ है या ये इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं इससे, वो स्पेसिफिकेशन पे पूरा होता है, एंड येट नॉट बी फिट फॉर इट्स पर्पस. So the specification may be faulty,
or it may not accord with what the customers want. So specification जो है मे बी उसमें fault हो सकता है, और मे बी it wouldn't be exactly जिस तरह जो customer की demand है उससे related ना हो. So meeting specifications may be a necessary condition of quality in most instances, but it is not a sufficient one. So specifications को meet करना के एक product की life या उसकी expectancy या उसकी functions जो है उसको वो meet कर जाए जो जिसके लिए वो design हुआ है, that would maybe it would be maybe necessary condition for of quality, लेकिन बहुत सारे instances में sufficient नहीं है वो, यानी कारआमद नहीं है इतना. Maybe quality के लिए important ज़रूर है वो. Now, the 80-20 rule. Now, Juran was the first management guru to deal with the broader management issues of quality. So, Juran ने जो main management issues जो थे quality के, उसको deal करने के लिए सबसे यानी he was the first person who did it. Now, he believed, like Deming, that most quality problems are traceable back to management decisions. So, डेमिंग की तरह उसकी भी यही थॉट थी कि अगर क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं या क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, सो उसको आप ट्रेस बैक कहाँ कर सकते हो जहाँ से मैनेजमेंट ने कोई गलत डिसीजंस लिए, कोई गलत फैसले किए. So the responsibility according to him also fell onto the shoulders of the management, not on the workers or employees or the staff. So he believed that poor quality is usually the result of poor management. तो इसके भी यही thoughts थे डेमिन की तरह के poor quality सिर्फ poor management से ही आती है, यानी it's not a fault of the people working in that institution. So it's how the management, the senior management makes decisions and the way they run their company. Now, using the Pareto principle, Juran believed that 80% of an organization's quality problems are the result of the management controllable defects. So, उसके मुताबिक अब परेटो प्रिंसिपल उसने यूज किया, ठीक है, उसके मुताबिक उसका जो है 80% उसने समझा कि जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या कंपनी में अगर क्वालिटी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो मैनेजमेंट के डिफेक्ट्स की वजह से है. सो पुटिंग द सिस्टम्स राइट often means putting the quality right. It follows from that 80% of problems lie with management, as they have control of 80% of the systems in an organization. So, agar hum ye dekhein, according to Juran, he was saying that putting the systems right often means putting the quality right. यानी quality को बेहतर करना, systems को बेहतर करने का मकसद ही quality को बेहतर करना है. एंड वो वहाँ से उसने ये जज किया कि 80% जो है जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैनेजमेंट के सेक्टर में है. एंड क्योंकि उन मैनेजमेंट का जो है कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन पे या इंस्टीट्यूशन पे वो 80% के करीब है. Like they are so much in power and so much in control of running things that only they are the ones who are believed to be responsible if there are any quality issues, because they haven't given that power to their employees or staff. उन्होंने वो powers जो है अपने lower staff या अपने employees को नहीं दी. तो मैनेजमेंट जब 80% कंट्रोल कर रही है तो ऑब्वियसली जब 80% अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो उन्हीं की फॉल्ट की वजह से है. नाउ strategic quality management अब अगर हम देखें तो जुरान believe that quality does not just happen, it has to be planned. So जुरान के मुताबिक quality खुद से नहीं आ जाती किसी चीज में, उसको प्लान करना पड़ता है. Now, to assist managers in planning quality, Juran developed an approach that he called strategic quality management. अब मैनेजमेंट को वो फॉल्ट्स दूर करने के लिए, वो 80% मिस्टेक्स और क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे, जो मैनेजमेंट की साइड से आ रहे थे, उनको दूर करने के लिए जुरान ने एक प्रोसेस, एक अप्रोच जो है एक डेवलप किया जिसको उसने स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम दिया. नाउ SQM. SQM is a 3-part process based on staff at different levels making their own unique contributions to quality improvement. So SQM जो है वो 3 हिस्से में उसने ये प्रोसेस को डिवाइड किया है. एंड 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टाफ में जो है
और ये उनकी अपनी यूनिक कंट्रीब्यूशंस होंगे स्टाफ की ताकि क्वालिटी इम्प्रूव की जा सके. नाउ सीनियर मैनेजमेंट हैज़ द स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रेटेजिक व्यू जो उसका ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या कंपनी का है वो सीनियर मैनेजमेंट के पास होता है. ना मिडिल मैनेजर्स जो है टेक एन ऑपरेशनल व्यू ऑफ क्वालिटी. मिडिल मैनेजर्स जो होंगे सीनियर मैनेजमेंट वो टेक अ स्ट्रेटेजिक व्यू. Middle managements would take an operational view of quality, while the workforce is responsible for quality control. So, senior management जब तक strategic planning नहीं करते properly quality management के लिए या improvement के लिए, then middle managements would be they would be doing the operational side of it. ठीक है, bringing those views into ऑपरेशन और प्रोसेस, और फिर वर्कफोर्स जो है वो उस क्वालिटी कंट्रोल को के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. सो ये स्टेप वाइज सीनियर से लेके वर्कफोर्स तक ये प्रोसेस एक मेंटेन करने की ज़रूरत होती है. नाउ दिस इज़ एन आइडिया दैट हैज़ अ रेडी एप्लीकेशन टू एजुकेशन. अब अगर हम एजुकेशन का फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, सो ये आइडिया जो है ये एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है. नाउ सीनियर मैनेजर्स and governors take the lead in strategic quality management by setting out the institution's vision, priorities and policies. So senior managers जो है उनके या senior heads जो है या leaders है या governors हैं वो strategic quality management के रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, सेटिंग आउट एनी अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशंस विजन. इंस्टीट्यूशन का विजन क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो चाहते क्या है, एंड उनकी पॉलिसीज के मुताबिक. नाउ मिडिल मैनेजर्स का क्या काम होता है, दे आर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी. They take responsibility for quality assurance, which involves them in coordinating information from their teams, systematically checking on effectiveness and transmitting the results of monitoring both to teaching teams and to the senior management. So, senior managements आपके heads आ गए institution के, ठीक है? Let's say in education, in a university, a director or a chancellor or a vice chancellor or a president of a university would be the senior management. Now, the middle managers would be the HODs, the head of departments, or members of faculty who are responsible for quality assurance. Now, उनकी responsibility ये होती है कि उनकी responsibility involves कि वो कोऑर्डिनेट करें इंफॉर्मेशन अपनी टीम्स के साथ, दैट मीन्स रिमेनिंग स्टाफ एंड फैकल्टी के साथ, सिस्टमैटिकली चेकिंग ऑन इफेक्टिवनेस, और इफेक्टिवनेस देखें उस रिजल्ट का कि उस प्रोसेस में कितना इफेक्टिव है वो, एंड ट्रांसमिटिंग द रिजल्ट्स ऑफ मॉनिटरिंग बोथ टू द टीचिंग टीम्स, और टीचिंग टीम्स जो हैं उनको भी वो आगाह करें उससे रिजल्ट से, एंड सीनियर मैनेजमेंट को भी. So they are in a way the middle people who are working between the teaching teams or the working staff and the senior management. And they are supposed to work things into an operational phase. Now, teachers operating in teams exercise quality control. So teachers जो है जो teams में काम कर रहे हैं वो quality control की responsibility उनके ऊपर आती है. Now they can design the characteristics and standards of programs of study so that they conform to the needs of their learners. अब teachers का क्या काम है कि वो characteristics या standards जो है अपने programs या अपनी study या अपनी curriculum में लेके आ सकते हैं जो उनके learners की need को पूरा करे. Now the Juran Institute, which provides consultancy based on Juran's principles, preaches a project-by-project team-solving approach to quality planning. So Juran के institute जो है that provides consultancy-based है, ठीक है, consultancy देते हैं वो based on Juran's principles. Juran के principles की coach करते हैं लोगों को. And it preaches that a project-by-project team solving, यानी bit by bit, step by step जो है teams जो है वो मिल के काम करें, और they would approach to a system in which they would be planning quality or quality improvement की planning करें. Now quality planning leads to quality improvement.
सो क्वालिटी प्लानिंग जब वो कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है. एंड ओनली has meaning in practical application, लेकिन सिर्फ ये practical application में ही इसका sense बनता है. Now Duran has said that all quality improvement takes place project by project and in no other way, and he quoted that in 1989. Now Duran के मुताबिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट सिर्फ जो है वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, स्टेप बाय स्टेप ही आ सकती है और किसी और तरीके से नहीं ले आई जा सकती. Now, Duran developed a roadmap to quality planning, which consists of the following steps. So, Duran ने एक roadmap बनाया, एक system बनाया, step by step चलने का कि quality planning किस तरीके से की जा सकती है. So, following steps are the ones that he thought are important in planning quality. So, number one was identify who are the customers. पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करें कि आपके कस्टमर्स कौन हैं. ठीक है, एजुकेशनल फील्ड में अगर आप देख रहे हैं तो आप वो देखेंगे कि आपके पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके कस्टमर्स होंगे. सो व्हाट आर देयर नीड्स. नाउ डिटरमिन द नीड्स ऑफ दोज कस्टमर्स. सो पहले आप कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन है, फिर उनकी नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इस चीज़ से उनको क्या हासिल होना है या क्या वो हासिल करना चाहते हैं. देन ट्रांसलेट दोज नीड्स इनटू आवर लैंग्वेज. फिर उन नीड्स को स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज या टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना. ठीक है, ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. नाउ डेवलप अ प्रोडक्ट दैट कैन रिस्पॉन्ड टू दोज नीड्स. फिर ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो उन की ज़रूरियात को पूरा कर सके. ठीक है, उनकी नीड्स पे पूरा उतरे. नाउ ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट फीचर्स सो एज टू मीट आवर नीड्स एज वेल एज द कस्टमर नीड्स. और प्रोडक्ट फीचर्स इस तरीके से बनाए जाएं कि वो हमारी नीड्स को भी पूरा करे एंड कस्टमर की नीड्स को भी पूरा करे. सो डेवलप अ प्रोसेस दैट इज एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. और ऐसा प्रोसेस डेवलप करें जो प्रोडक्ट आप लाना चाह रहे हैं उसको वो प्रोड्यूस कर सके, कामयाबी से उसको प्रोड्यूस कर सके एंड उसमें कामयाबी ला सके. नाउ ऑप्टिमाइज द प्रोसेस. देन prove that the process can produce the product under operating conditions. और फिर ये प्रूव करना कि वो जो प्रोसेस है, सिस्टम है क्वालिटी प्लानिंग का, कि वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है ऑपरेटिंग कंडीशंस में, यानी वर्किंग कंडीशंस में. देन ट्रांसफर द प्रोसेस टू ऑपरेशंस. और फिर उसके बाद प्रोसेस को ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफर करें. नाउ according to that, Duran in his writing believed that there are no shortcuts to quality. So उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई आप यानी यू कैन टेक एनी शॉर्टकट टू रीच और अचीव दैट लेवल ऑफ क्वालिटी दैट यू वांट टू. सो ही वाज स्केप्टिकल ऑफ कंपनीज दैट अप्लाइड द जापानीज मॉडल ऑफ क्वालिटी सर्कल्स. So, according to him, जो कंपनीज थी जिन्होंने जापानीज मॉडल ऑफ क्वालिटी सर्कल्स को अपनाया, he doubted their effectiveness in the West. उसका माइंड में ये था कि जो जापानीज ने क्वालिटी सर्कल्स के लिए मॉडल सेलेक्ट किया वो जापान में यस कामयाब है, बट वो वेस्ट में कामयाब नहीं होगा या उतना इफेक्टिव नहीं होगा. Now, rather he believed that the majority of quality problems are the fault of poor management rather than poor craftsmanship. So, बजाय ये चीज़ देखने के कि वो समझे कि सिर्फ poor management का ही कसूर है, not poor craftsmanship. यानी जो लोग workers है, ठीक है, उनका कसूर नहीं है, उनकी पोर क्राफ्ट्समैनशिप या उनका डेवलपिंग जो उन्होंने प्लान किया है वो वीक नहीं है, बट फॉल्ट आ जाती है पोर मैनेजमेंट में. सो ज्यादा क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो है ना पोर मैनेजमेंट से क्रिएट होती हैं. Now, he did not believe that employees were responsible in the main for poor quality. So, according to him, employees poor quality देने के लिए responsible नहीं थे. In general, he believed that management controllable defects account for over 80% of all quality problems. और according to him, उसकी ये नहीं बिलीफ ये थी कि मैनेजमेंट कंट्रोलेबल डिफेक्ट्स जो थे वो 80% जो है क्वालिटी प्रॉब्लम्स का वजह थी, और वो मैनेजमेंट जो है ना उनके जो उन्होंने डिफेक्ट्स कंट्रोल किए हुए थे, ये जो उनके कंट्रोल में चीज़ें थी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं.
So when we speak about strategic quality management, अब अगर हम इसको चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं strategic quality management को, so we would say कि 7 categories of criteria are included in evaluating the company's overall strategic and operational strategies employed in implementing quality improvement efforts. So जहाँ पे quality management की बात आ जाती है और strategic quality management की बात आ जाती है, तो 7 categories है ऐसी, या उनको criteria हम कह सकते हैं, जो एक कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज को अगर हम एवेल्युएट करना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड इन इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी जो है वो स्ट्रैटेजिक या ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करता है अपने प्रोग्राम में क्वालिटी लेके आने के लिए. नाउ दीज आर, नंबर 1 वुड बी लीडरशिप. पहली चीज़ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंप्रूवमेंट है की ज़रूरत है उसको. फिर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक क्वालिटी प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस क्वालिटी, क्वालिटी एंड ऑपरेशनल रिजल्ट्स, कस्टमर फोकस एंड सेटिस्फैक्शन. सो ये 7 चीज़ें अगर हम जज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज, ये कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज हैं जो हम एवेल्युएट करने के लिए किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजिक क्वालिटी को जज करने के लिए हम कर सकते हैं. एक तो उसकी हम लीडरशिप देखते हैं, ठीक है. दूसरी उसकी इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस हम जज करते हैं. फिर हम उसकी प्लानिंग जज करेंगे. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के किस तरीके से एम्प्लॉय कर रहे हैं या HRM, उनकी कैसे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम उनका कैसा है. फिर उनका प्रोसेस ऑफ क्वालिटी को मैनेज कैसे कर रहे हैं वो, ऑपरेशनल रिजल्ट्स उनके क्या है, एंड फिर कस्टमर फोकस और सेटिस्फैक्शन उनकी किस तरह है. सो when we speak about the important views that can be used to define strategic quality management, even though Garvin introduced the term and elaborated it in term strategic quality management 11 of 5 elements, he did not define it in a compact form. So important views अगर हम जज करते हैं तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं strategic quality management को कि even though कि Garvin ने ये इंट्रोड्यूस करवाया, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि Garvin ने इंट्रोड्यूस तो ये करवा दिया था टर्म, ठीक है, और उसने एलैबोरेट भी किया, इस पे जोर भी दिया कि टर्म्स जो स्ट्रैटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है, उसका 11 of 5 एलिमेंट्स, उसके 11 जो नंबर था 5 एलिमेंट्स में से ही डिड नॉट डिफाइन इट इन अ कंपैक्ट फॉर्म. एक कंपैक्ट फॉर्म में उसने उसको डिफाइन नहीं किया, डिफरेंट एलिमेंट्स के तौर पे उसने डिफाइन किया. लेकिन जुरान ने अगर हम देखते हैं, जुरान ऑन द अदर हैंड डिफाइंड SQM स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर सेटिंग एंड मीटिंग क्वालिटी गोल्स थ्रू आउट द कंपनी. सो उसने तो इंट्रोड्यूस किया कि वो एक बस टर्म्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के. जुरान ने दूसरे हाथ पे ये चीज़ की कि उसने स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट को ऐसे एक्सप्लेन किया कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है, जो सेटिंग ताकि वो सेटिंग और मीटिंग क्वालिटी गोल्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है वो अपने गोल सेट कर लेती है या उसने वो गोल्स मीट करने होते हैं, उसको वो सिस्टमैटिक अप्रोच जो है उसको उसने स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट का. So the BSI standards defined it as a management philosophy and company practices that aim to harness the human and material resources of an organization in the most effective way to achieve the objectives of the organization. तो BSI स्टैंडर्ड्स जो थे उन्होंने इसको डिफाइन किया मैनेजमेंट फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कंपनी की प्रैक्टिसेस जो हैं या उनके तरीके जो हैं या उनके एम्स जो है, ताकि वो हार्नेस कर सके ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर उनका मोस्ट इफेक्टिव वे जो है अचीव करने का ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वो उन्होंने स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम दिया. सो बोथ दीज डेफिनेशंस आर वेरी ब्रॉड एंड अपीयर टू स्ट्रेस ओनली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट process in achieving an organization's goals. So दोनों ये definitions जो है ये strategic quality management को बहुत broad तरीके से explain कर रही है, not pinpoint नहीं कर रहा, बहुत broad तरीके से वो चीज़ कर रही है, और सिर्फ एक चीज़ पे stress कर रही है कि management process जो है किसी भी organization के goals को achieve करना या उन goals तक पहुंचने के लिए management process बहुत important है. तो दोनों चीज़ें, दोनों explanations उसके ऊपर focus कर रही हैं ज़्यादा.
So we would say that they do not describe the basic elements and how they fit together to achieve quality improvement goals and objectives. So हम ये कह सकते हैं कि वो उसको लेकिन वो ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिक एलिमेंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा और ये नहीं बता रहा कि वो कैसे इकट्ठे फिट होते हैं एंड उनको अचीव करने के लिए, उन क्वालिटी इंप्रूवमेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या एलिमेंट्स जरूरी हैं. सो इन दिस रिगार्ड Duran definition also falls short even though he included the accomplishment of quality goals. Even though इधर फिर हम Duran का भी कहते हैं कि Duran की भी जो डेफिनेशन है वो भी पूरी नहीं उतरती इस बात पे, क्योंकि वो भी सिर्फ क्वालिटी गोल्स के ऊपर ही, उनकी अकॉम्प्लिशमेंट पे या उनको अकॉम्प्लिश किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर ही फोकस कर रहा है सिर्फ. सो इन एडिशन द BSI यूज्ड द टर्म total quality management TQM instead of strategic quality management. So BSI standards ने जो है बजाय के वो strategic quality management का टर्म यूज करते, उन्होंने उसको नाम चेंज करके total quality management का नाम दे दिया. तो in a way दोनों चीजें एक ही चीज है. So as long as they recognize the strategic importance of quality and quality planning, both terms can be used interchangeably. So अगर दोनों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी और स्ट्रैटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दोनों अगर जो है क्वालिटी की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को जज कर सके या क्वालिटी प्लानिंग को अगर ये डिफाइन कर देता है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरह ही, एक ही तरह फिर ये नहीं यूज किए जा सकते इन टर्म्स को. So in this sense, we recognize the significance of strategic quality or value of quality as Garvan did in implementing the quality improvement strategies. So हम इस सेंस में हम कह सकते हैं कि हम recognize करते हैं कि significance जो है, strategic value जो है एक quality की, वो गार्वन ने ये चीज़ की कि उसने जब इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज, जब आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो फिर उसने रिकॉग्नाइज किया कि ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ क्वालिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका भी सिग्निफिकेंस है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है. So thus we define the strategic quality management as a comprehensive and strategic framework linking profitability. So हम फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक कॉम्प्रहेंसिव या स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है जो प्रॉफिट्स को लिंक कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है एंड कॉम्पिटिटिवनेस टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट्स विथ द एम ऑफ हार्नेसिंग द ह्यूमन. और कॉम्पिटिटिव जो है ना, कॉम्पिटिटिवनेस जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो कंपटीशन में आप आते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हमारी बेहतर होनी चाहिए, हमारे एफर्ट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ज़्यादा बेहतर होने चाहिए. किसी भी एम जो है जो किसी ह्यूमन बीइंग का या मटेरियल का या इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज या ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो ख़ास तौर पे वाइड एंड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट विल अलाउ द डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और ख़ास तौर पे इम्प्रूव करना उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिलीवर करने में हेल्प करें. So this definition, as mentioned earlier, describes the basic elements which are required and emphasizes the needs for the management process in accomplishing the quality improvement goals and objectives. So ये definition हमें maybe easy होता है कि describe करने के लिए कि basic elements जो है वो strategic quality management के क्या है और उनको क्या हम उनको emphasize हम किस तरह कर सकते हैं कि need के management process का need उसको improve करने की कैसे जरूरत है ताकि वो बेहतर ऑब्जेक्टिव्स एंड बेहतर इंप्रूव्ड गोल्स की तरफ जो है ना लेके जा सके. So the core concepts of strategic quality management would be like, as in the case of the definition of SQM, we can identify certain core concepts from the significant contributing factor that are promoted by the quality gurus in one form or another in managing quality. So हम अगर core concepts देखें strategic quality management के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो core concepts हैं इसके, as in the case of the definition of इसकी खास तौर पे हम जब definition के point of view से हम देखते हैं, so we can identify certain core concepts from the significant contributing factors that are promoted by the quality gurus. तो हम
डेफिनेशन अगर हम स्ट्रैटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट की जज करना चाह रहे हैं और उसके कोर कॉन्सेप्ट्स देखना चाह रहे हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन फैक्टर्स को देखते हुए कि क्या चीज़ें, कैसी ऐसी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को प्रमोट कर रही हैं, खासतौर पे क्वालिटी गुरुज ने जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया इन वन फॉर्म और अनदर इन मैनेजिंग क्वालिटी, और उन्होंने किस तरीके से क्वालिटी इंप्रूवमेंट को उन गुरुज ने जो मेन जो जैसे शुवार्ट है या जुरान है, उन लोगों ने कैसे इसको प्रमोट किया, तो उससे हम जज कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन. सो एज सच दे शुड बी फंडामेंटल इन डेवलपिंग द स्ट्रैटेजिक एज वेल एज ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. सो वी वुड आइडेंटिफाई कि कस्टमर फोकस होना चाहिए, उसमें लीडरशिप इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक क्वालिटी प्लानिंग होनी चाहिए, फिर डिजाइन क्वालिटी स्पीड एंड प्रिवेंशन होना चाहिए, पीपल पार्टिसिपेशन एंड पार्टनरशिप हो, एंड फैक्ट बेस्ड मैनेजमेंट हो. So these all play an important role. Now, strategic quality planning, as Garvin stated, strategic quality plans are the glue holding together an organization's quality improvement efforts. तो एक तरह से गार्वन के मुताबिक जो है strategic quality planning जो है वो एक तरह से गोंद की तरह है, जो भी organization है उसकी quality improvement efforts जितने भी हैं वो efforts डाल रहे हैं, उसको एक glue की तरह उसने उसको जो है ना quality planning जो है वो काम करती है. So achieving excellence in quality and market leadership requires a strong failure orientation. So obviously achieve करना excellence, ठीक है, quality में quality अच्छी लेके आना, market leadership कि आपके market में leadership आए, वो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ओरिएंटेशन की उसमें ज़रूरत होती है, और एक विलिंगनेस टू मेक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स टू कस्टमर्स, और एक कस्टमर्स की तरफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स लेके आना वो इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयज, स्टॉक होल्डर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी की तरफ भी. So the quality goals as well as the strategic and operational plans need to reflect these commitments. तो उनको वो obviously जो भी goals हैं वो ये strategic और operational plans को reflect करने चाहिए, इन commitments को. They should be developed in concrete terms and highly focused. इनको focus भी highly होना चाहिए, and they need to address training, employee development, supplier development, technology evolution and other relevant factors that bear on quality. और obviously इनमें training बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, उनकी एम्प्लॉय डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, सप्लायर डेवलपमेंट, फिर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉन्क्रीट टर्म्स में अगर हम उनको हाईली फोकस करें क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए. सो दे नीड टू एम्बॉडी द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स. उनको शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म नीड्स दोनों को ज्वाइन करना होता है. So in addition, now strategic quality management would be the goals should be integrated into the overall corporate business strategies. और आपकी जो corporate business strategies हैं उसके अंदर इसके goals को जो है ना mix करना बहुत important है ताकि वो उन पे focus हो सके. So as Juran stated, as long as TQM isn't an essential part of a business plan, we can forget obtaining results. So thus underscoring the importance of this aspect, personal communication of Van Newland. So Juran जो एक क्वालिटी गुरु है और उनके मुताबिक अगर TQM आप किसी बिजनेस प्लान में नहीं इन्वॉल्व करते हो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, तो वो फिर आप प्रॉपर तरीके से रिजल्ट्स हासिल कर ही नहीं सकते. So communicating the goals and objectives to all employees in the organization is extremely useful in motivating them to rally round and making quality their top priority. So obviously communicate करना अपने goals और objectives अपने employees को, वो बहुत important है किसी भी organization में, और वो बड़ा useful हो जाता है किसी भी को motivate करने में ताकि आप क्वालिटी को टॉप प्रायोरिटी दे सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन में. तो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में काम आता है कि उनको उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हों. Then core values of strategic quality management associated with it, the 7 core concepts are the core values, which will be measured by carefully developing and implementing the necessary quality improvement strategies. So core values जो है strategic quality improvement management के,
वो एसोसिएट होते हैं उन 7 कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ या कोर वैल्यूज जो है जिनसे मेजर किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है कोई भी आप इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज जो अपनी कंपनी में लेके आना चाहते हैं। ना दोज कोर वैल्यूज बेसिकली इंक्लूड, उन कोर वैल्यूज में क्या चीजें आ जाती हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ जाती है एंड द कंपनीज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स such as cycle time is important, on time delivery, आपकी डिलीवरी टाइम पे हो, डिफेक्टिव पार्ट्स पर मिलियन, डिफेक्टिव पार्ट्स नहीं होने चाहिए, यानी मिलियंस में भी कोई एक डिफेक्टिव पार्ट हो, रिलायबिलिटी हो, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हो, एब्सेंटेजम हो, ठीक है कि एब्सेंट ना हो लोग, मार्केट शेयर आपका हाई हो, सेल्स पर एम्प्लॉई हो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, और आपके एसेट्स के ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिले, और एज दे रिलेट टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान्स, क्योंकि वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान्स को रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये आपके जो है ना कोर वैल्यूज हो जाते हैं जो आपको बेसिकली इंक्लूड करने हैं। Companies can document policies, processes and procedures for an effective quality system to strategic quality management 37 that complete the ISO 9001 registration process successfully. So companies जो है वो strategic quality management को इस तरह भी document कर सकते हैं कि उनकी policies या उनके processes या procedures को effective तरीके से एक quality system में document कर दिया जाए, जिससे जो है वो strategic quality management का जो plan है वो implement किया जा सकता है। और ऑब्वियसली ISO 9001 जो रजिस्ट्रेशन या जो सर्टिफिकेशन है वो भी इन्हीं स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रोसेसेस पे ही चलता है, और वो फिर प्रोसेस जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। सो देन दे कैन यूज द रिजल्टिंग क्वालिटी सिस्टम्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कस्टमर्स वांट। सो फिर ऑब्वियसली एक कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन वो क्वालिटी सिस्टम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं रिजल्ट जो जिसके जो है वो बेहतर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और देयर सर्विसेज, especially जो उनके कस्टमर की wants and needs हैं उसके मुताबिक। So such an integration can provide an efficient implementation of quality improvement strategies that are central to the strategic quality management in a gradual progression. So ऐसी integration जो है वो एक efficient implementation लेके आ सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ आपकी स्ट्रैटेजीज में आपको बेहतरी ला सकती है। स्ट्रैटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोग्राम के मुताबिक अगर आप चलें या आपकी कंपनी उस मुताबिक जो है अपनी प्रोसीजर्स या स्ट्रैटेजीज डेवलप करे, निस्बतन के वो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन और ऑब्वियसली वो फिर एक they are progressing towards success then gradually. So that would explain strategic quality management. Now, our third guru that was Philip Crosby. Now, according to him, जब हम उसका अगर डिटेल में देखते हैं कि what his point of view was. Now, Philip Crosby, according to him, he said quality is free, quality free of cost. Now, Philip Crosby was a graduate of the Western Reserve University in the United States. So, उन्होंने Western Reserve University USA से पढ़ा, ठीक है, graduate किया. After naval service in the Korean War, he held a variety of quality control jobs, and first being as a line inspector. So naval service जब उन्होंने कोरियन वॉर में उसके बाद ज्वाइन की हुई थी, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी क्वालिटी कंट्रोल जॉब्स भी की, जिसमें सबसे पहली उनकी जो जॉब थी वो लाइन इंस्पेक्टर की थी. He was quality manager on the first Parachene missile program and later joined ITT, where for 14 years he was corporate vice president and director of quality. So in 1979, Crosby published his most famous book, Quality is Free. So after the Korean War, after serving in that, उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल जॉब्स की, जिसमें लाइन इंस्पेक्टर उनकी फर्स्ट जॉब थी. उसके बाद उन्होंने जो पहला पैराशीन मिसाइल प्रोग्राम था उसमें काम किया, ठीक है, एंड बाद में उन्होंने फिर ITT ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे उन्होंने 14 साल अपनी सर्विस दी और वो वहाँ के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट थे और डायरेक्टर थे क्वालिटी के. सो इन 1979 उन्होंने एक बुक पब्लिश की क्रॉस्बी ने, जिसका नाम उन्होंने दिया क्वालिटी इज फ्री.
Now, following its success, he set up Phillips Crosby Associates Incorporated and the Quality College in Florida, where he taught organizations how to manage and improve quality. तो जब उनकी बुक बहुत फेमस हो गई और बहुत सक्सेस उसने लिया, ठीक है, तो उसकी सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश की, फिलिप क्रॉस्बी एसोसिएट्स ठीक इनकॉर्पोरेटेड, और उसके बाद फिर उन्होंने क्वालिटी कॉलेज एक बनाया फ्लोरिडा में, जहाँ पे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज को क्वालिटी इम्प्रूव करने के तरीके या मैनेज करने के तरीके सिखाते थे. Now, Crosby published Quality Without Tears in 1984, as well as a string of other management books. So, उन्होंने दूसरी बुक अपनी जो है Quality Without Tears जो है वो 1984 में पब्लिश की, और उसके अलावा उन्होंने मैनेजमेंट बुक्स में और भी जो है किताबें पब्लिश की उसके बाद. Now, Philip Crosby, Crosby's name is associated with two very appealing and powerful ideas. So इनका नाम जो है दो major powerful और main ideas के साथ linked है, क्योंकि the first is that quality is free. So सबसे पहला उन्होंने क्या vision या idea जो है वो launch किया कि quality जो है वो free है. Now this very powerful idea is premised on the idea that savings from quality improvement programs pay for themselves. So according to him, ये idea कि quality is free जो है, ये concept उन्होंने कहाँ से लिया? ये concept उन्होंने ऐसे लिया कि अगर quality improvement programs जो है वो during the services or during the production or working of an organization वो अपने लिए फिर खुद pay करता है, क्योंकि it is saving, वो savings कर रहे हैं. They are not losing their money on checking it after the product or the service is defected, but improving it while during the process. So the second idea most associated with him is the notion that errors, failures, waste and delay, all the unquality things can be totally eliminated if the organization has the will. So उनका सेकंड आइडिया क्या था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहे उसको दूर करना, एलिमिनेट करना या हटाना क्वालिटी प्रॉब्लम्स को, तो ऐसी चीजें जिनसे एरर्स हैं, फेलियर्स हैं, वेस्ट है, डिले है, वो ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को खुद रिमूव अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है. एंड दे कैन इम्प्लीमेंट अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस और अ प्रोग्राम into their system. Now this is his controversial notion of zero defects. और ये उन्होंने एक नोशन एक क्रिएट किया, ठीक है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल था, बहुत लोग उसके यानी दे वर मे बी क्रिटिसाइजिंग इट ऑल्सो. उन्होंने उसको नाम दिया जीरो डिफेक्ट्स का. दैट मीन्स के जीरो डिफेक्ट्स कहाँ से आते हैं? जब एक प्रोसेस में ही क्वालिटी चेक्स इतने हों और हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एंड में डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस हो ही नहीं सकते. सो दैट वुड बी जीरो डिफेक्ट्स. नाउ बोथ आइडियाज आर वेरी अपीलिंग इन एजुकेशन. एजुकेशन के फील्ड में अगर हम उसको देखें तो दोनों बहुत अपीलिंग है. Now the idea that quality improvement can pay for itself and can lead to an elimination of failure, especially if this could mean pupil and student failure, is one that few institutions can ignore. So अगर education point of view से हम देखें या educational institutions की point of view से देखें, तो जो idea है quality improvement का, वो अपने आप इसलिए पे करता है या अपने इसलिए सेव आपको करके दे रहा है क्योंकि वो फेलियर को एलिमिनेट कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है. स्पेशली खास तौर पे जब अगर वो देखें कि स्टूडेंट और पीपल या उनके कस्टमर्स जो हैं उनकी फेलियर, ठीक है. और ये ऐसी चीज है जो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इग्नोर नहीं कर सकती. नाउ क्रॉसबी, like all the other gurus, is at great pains to emphasize that the route to zero defects is a difficult although achievable one. So क्रॉसबी ने जो है वो मेन चीज ये पॉइंट आउट की कि यानी उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि जीरो डिफेक्ट्स तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल ना हो या अचीवेबल ना हो. So as he has written, quality is free. तो उनके मुताबिक quality is free. It's not a gift, but it is free. So what costs money are all the unquality things.
ठीक है, all the actions that involve not doing jobs right the first time. So according to Crosby, आप ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ कर रहे हो, जहाँ पे आप वो अनक्वालिटी फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें जो है फेलियर आ गया, जिसमें डिफेक्ट्स आ गए, जिसमें आपकी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आप जब एक प्रोसेस में चल के गुजर के जब आप मनी उस पर लगा रहे हो, मटेरियल लगा रहे हो, प्रोडक्ट लगा रहे हो, लेट्स से इन मैन्युफैक्चरिंग कह लो, वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, हमने उसमें मटेरियल अगर वीक लूज किया या उसके प्रोसेस में हमने उसको चेक नहीं किया प्रॉपर्ली, एंड एट द एंड रिजल्ट द प्रोडक्ट वुड बी डिफेक्टिव, सो दैट वुड कॉस्ट अस मनी, क्योंकि वो वेस्ट चला जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, वो अब मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता वो प्रोडक्ट. सो that is a way of wasting money. So according to him, उन्होंने कहा कि जब अगर आप ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट का सिस्टम पहले ही लेके आ जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अनक्वालिटी थिंग्स जो है वो ऑब्वियसली वो पहली दफ़ा में जो चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो कॉस्ट और वेस्ट और डिफेक्ट ही नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली उसका एक्सपेंस भी घट जाएगा. Now, according to Crosby's improvement program is one of the most practical and detailed guides available. So Crosby के मुताबिक जो है उसका जो improvement program था वो एक बहुत practical और detailed guide है. Now, unlike Deming's more philosophical approach, Crosby's model can be followed as a plan of action. सो डेमिंग्स के निस्बतन अगर आप देखें तो फिलोसफिकल अप्रोच अगर आप देखें तो क्रॉस्बी का जो मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है, वो बहुत सिंपल एंड प्लेन है एक्शन के लिए. नाउ क्रॉस्बी वाज द पॉपुलरेस्ट राइटर एंड हिज अप्रोच इज एसेंशियली practical. So because वो he was a very popular writer also, और उनका अप्रोच जो था वो बहुत ज़्यादा practical point of view से उन्होंने समझाया. Now inequality is free. Crosby outlines his view that a systematic drive for quality will pay for itself. So उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वालिटी की तरफ इम्प्रूव करने की ही प्रोसेस एक इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो दैट वुड पे फॉर इटसेल्फ. दैट मीन्स दैट ऑब्वियसली लेस डिफेक्ट्स एंड the product would be more successful or the service would be more successful. Now he says that it is non-conformance problems that lead to scrap, rework, refits, tests and inspections. So क्योंकि वो खुद भी एज अ लाइन इंस्पेक्टर काम करते रहे, बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटी जॉब्स भी करते रहे, तो व्हाट ही केम टू द कंक्लूजन वाज कि नॉन कन्फॉर्मेंस जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्क्रैप की तरफ जाती हैं. जो स्क्रैप वो है जो मटेरियल जो वेस्ट में चला जाता है, जो प्रोडक्ट वेस्ट में चला जाता है. एंड रीवर्क, देन रीफिट्स अगर कर रहे हों, टेस्ट कर रहे हों या इंस्पेक्शन कर रहे हों, तो दैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स वुड बी कंसिडर्ड एज लूजिंग मनी. So they are the cost of quality. ये quality की cost में आते हैं. Now savings come from doing things right. Savings जो है अगर आप चीजें सही तरीके से करें तो आप वहां से बचत कर सकते हैं, वहां से सेव कर सकते हैं. Now in education, parallels can be seen with the cost and effort of retake examinations and the generally low success rate associated with them. So education में जो है अगर आप पैरेलल्स देखें, ठीक है, सो वो आप देख सकते हैं कि यू कैन सी हिम विद द कॉस्ट एंड एफर्ट टू रीटेक एग्जामिनेशंस, ठीक है. अब उसमें लो सक्सेस रेट क्यों एसोसिएटेड इसलिए है क्योंकि एजुकेशन में अगर वो दोबारा से एग्जामिनेशंस उनको रीटेक करने पड़े, ठीक है, दैट मीन्स के उसमें कॉस्ट भी बढ़ रहा है एंड उसमें एफर्ट भी ज़्यादा लग रहे हैं. So that would be an example in it of losing quality in the process. So zero defects are Crosby's major but controversial contribution to thinking on quality. So zero defects जो है वो Crosby का major concept है, but controversial contribution to thinking on quality. लेकिन controversial है क्योंकि जो quality thinking है, it is a powerful idea. वो एक पावरफुल आइडिया है, ठीक है, एंड इट इज द कमिटमेंट टू सक्सेस एंड द एलिमिनेशन ऑफ फेलियर. सो एक कमिटमेंट जब वो कर लेते हैं कि हमने सक्सेस अचीव करनी ही है या कामयाब होना ही है, तो वो ऑटोमेटिकली फेलियर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है.
Now, it involves putting systems in place that ensure that things are always done in the right way, first time and every time. So, उस चीज़ के लिए सबसे पहले उन ऐसे सिस्टम्स अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में या सिस्टम में डालने की ज़रूरत है जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ठीक है, ताकि उससे ये इंश्योर हो सके कि पहली दफ़ा में ही काम जो है प्रॉपरली करेक्ट तरीके से हो जाए और उसमें फिर फॉल्ट्स ना हो. So Crosby argues that aiming for zero defects in a business context will increase profits by saving on costs. So अगर business context के point of view से देखा जाए तो अगर आप एम कर रहे हैं जीरो डिफेक्ट्स की तरफ, यानी ऐसा प्रोसेस ला रहे हैं जिसमें फर्स्ट टाइम ही सब कुछ करेक्ट किया जाए एंड मिस्टेक्स ही ना हो, डिफेक्ट्स ही ना हो, देन दैट वुड आपको वो जो है वो प्रॉफिट्स लेके आएगा किस चीज़ में, आप जब कॉस्ट पे सेव कर रहे हैं. So that those savings जो आप कॉस्ट में से बचा रहे हैं, that would be your increased profits. Now the impact of quality on the bottom line is what makes Crosby's model so attractive. So impact जो है quality का के bottom line पे वो Crosby के model को सबसे ज़्यादा attractive इसलिए करता है because it is gaining you more profits because you are saving on the part of the quality control costs. So Crosby does not believe in statistically acceptable levels of quality. तो उनके बिलीफ के मुताबिक ऐसे जो है statistically acceptable levels नहीं हैं क्वालिटी के. For Crosby there is only one standard, सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक, ठीक है, उसके डिफरेंट लेवल्स नहीं है, and that is perfection. और उनके मुताबिक perfection जो है is the only standard जिस पे आप प्रॉफिट्स या बिजनेस कोई कामयाब हो सकता है, कि उसमें फॉल्ट ही ना हो, हर चीज परफेक्शन पे हो. नाउ ही इज अ प्योर प्रिवेंशन मॉडल and he believes that it is possible to deliver errors, remove errors, the closer that one gets to zero defects. So उनका जो process है his is a pure प्रिवेंशन मॉडल, यानी उसमें डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने का तरीका है उनके मॉडल में. एंड उनके मुताबिक उनकी बिलीफ ये है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिलीवर एरर, रिमूव एरर्स, यानी द क्लोजर दैट वन गेट्स टू द जीरो डिफेक्ट्स, जितना क्लोजर आप जीरो डिफेक्ट्स के प्रोसेस को चलते हैं उतनी आप इजीली जो है एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, mistakes को remove कर सकते हैं. Now, however, not all commentators agree with this thesis. So, ज़रूरी नहीं है कि सब उसके साथ agree करें. Now, for example, Joseph Juran, a critic of Crosby, argues that after a certain point, conforming to requirements can actually impose additional costs. And as a result, he does not believe that zero defects is an attainable goal. So some of the critics जो है, कुछ लोग उसकी क्रॉसबी के ये पॉइंट ऑफ व्यू जीरो डिफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट से अग्री नहीं करते, लाइक जोसेफ जुरान. उनके मुताबिक क्या है कि सर्टेन पॉइंट एक आ जाता है कि जब आप व्हेन यू आर कन्फॉर्मिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वो एक्चुअली वो क्या करता है, वो कॉस्ट बढ़ा देता है एंड एज अ रिजल्ट वो बिलीव नहीं करते कि जीरो डिफेक्ट्स जो है वो अटेनेबल गोल है, यानी वो हासिल करने वाला गोल है. So Juran does not agree with Crosby on the zero defect policy. Now, zero defects is a concept which is harder to apply to services than to manufacturing. So zero defects जो है वो एक ऐसा concept है जो आप सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज में अप्लाई करना उसको बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो आपने ऐसे इम्प्रूवमेंट्स या ऐसे मेजर्स ले लिए जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉस में नहीं जा रहा या फॉल्ट में नहीं जा रहा, तो आप उसको करेक्ट करके जीरो डिफेक्ट्स का प्रोसेस उसमें एप्लीकेबल हो सकता है. लेकिन सर्विसेज में वो कैसे एप्लीकेबल होगा, ठीक है? कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सो इन सर्विसेज जीरो डिफेक्ट्स आर डिजायरेबल है, चाहते हैं, but it is difficult to guarantee fault-free service with so many opportunities for human error. So human error की इतनी opportunities है, इंसानों से इतनी गलतियां हो जाती हैं कि fault-free service provide करना, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती. So nevertheless, zero defects are an important service industry goal.
सो फिर भी लेकिन इंडस्ट्री गोल जो है वो जीरो डिफेक्ट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए. सो इट इज़ एन आइडिया दैट ऑट टू हैव एन इम्पोर्टेंट एको इन एजुकेशन. ये एक ऐसा आइडिया है जिसका एटलीस्ट एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल समझा जाना चाहिए, या उसका एक कोई ना कोई उसका लेवल होना चाहिए जिस पे या हिस्सा प्ले करना चाहिए उसको, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. नाउ एज it's simplest and most powerful, it would mean that all pupils and students would make a success of their education and fulfill their potential. So अगर सिंपलेस्ट तरीके से देखा जाए ह्यूमन एरर्स को हटा के, सो मोस्ट पावरफुल वो कब हो सकता है जब जितने भी पीपल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो खुद अपनी एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाएं और अपने पूरे पोटेंशियल को फुलफिल कर सकें और यूज कर सकें. दैट इज द ओनली वे कि जीरो डिफेक्ट्स आए. बट इन फैक्ट दैट डजंट हैपन ऑलवेज. So, the task of quality improvement in education would be building the systems and structures to ensure that this happened. So, अगर हम zero defects का system education में apply करना चाह रहे हैं, तो quality improvement का task आप कैसे कर सकते हैं कि आप systems and structures जो है उनको ऐसे तरीके से build करें कि ये मुमकिन हो सके. Now, much stands in the way of zero defects, particularly norm referenced examinations. Which make the goal of zero defects effect an impossibility, and a widely held view that standards can only be maintained by a high degree of failure. So, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ीरो डिफेक्ट्स के रास्ते में स्टार्ट होती है. अगर आप यानी हाइल होती है एजुकेशनल फील्ड में, अगर आप देखें खास तौर पे, अगर आप देखें कि वो नॉर्म रेफरेंस्ड एग्जामिनेशंस को अगर आप जज करें एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो द गोल ऑफ जीरो डिफेक्ट्स वुड बी मोर इफेक्टिव इफ they could do it on a manufacturing product. But in educational field अगर आप ये उसको practical system and structures में आप develop करना चाहें तो उसके effects जो है वो थोड़े से impossible है achieve करना. And a widely held view that standards जो है can only be maintained by a high degree of failure. तो ये concept create हो जाता है. Now, Crosby's improvement program, अगर उसके improvement program को अगर हम देखें, the essential step in quality program according to Crosby is management commitment. Now, this is crucial to the success of any quality initiative. So, essential step जो है quality program में Crosby के मुताबिक वो management commitment है. That means that the management should be committed to improve quality. Now, this is crucial to the success of any quality initiative. किसी भी quality initiative लेते हुए ये उस चीज़ के लिए बहुत important and बहुत crucial है. Now, the quality initiative must be sanctioned and led by senior management. और ये सीनियर मैनेजमेंट इसको जो है ना लीड कर सकते हैं, ठीक है, इनिशिएटिव लाना क्वालिटी का ना, और उसको अलाउ करना भी जो है सीनियर मैनेजमेंट का ही हाथ है ना. क्रॉस्बी सजेस्ट दैट दिस कमिटमेंट बी कम्युनिकेटेड इन अ क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट which needs to be short, clear and accessible. So according to him, senior management अब इस point of view को कैसे forward कर सकते हैं कि they can forward it according to through एक policy statement जो है quality policy statement बनाएं जिससे जो है बहुत short हो, clear हो और accessible हो, that everybody can be access it easily. Now the second step जो उसके point of view से builds on the commitment with the setting up our quality improvement team. अब second step उसका जो है वो किस तरह आ सकता है कि वो commitment हो कि वो एक quality improvement team बनाई जा सके educational field में. Now Crosby's improvement program, since every function within the organization is a potential contributor to defects and quality failures, it follows that every part of the organization must participate in the improvement effort. So, अगर आप देखते हैं कि every
फंक्शन जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, उसमें पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर जो है ना डिफेक्ट्स या क्वालिटी फेलियर्स के लिए एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, या एवरी फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, देन उसमें ज़रूरी ये पार्ट है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में everyone has to participate, सबने हिस्सा लेना है इम्प्रूवमेंट एफर्ट करने के लिए, ठीक है ना. द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम हैज द टास्क ऑफ सेटिंग एंड डायरेक्टिंग द प्रोग्राम that will be implemented across the organization. अब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम का क्या काम है कि उन्होंने ऐसा टास्क करना है कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम को डायरेक्ट करना है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो क्वालिटी का प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके. नाउ दिस टीम डज नॉट डू ऑल द क्वालिटी वर्क, ये सिर्फ सारा काम नहीं करते क्वालिटी वर्क का, दे जस्ट आर द पीपल हु आर लेटिंग द अदर पीपल वर्किंग देयर नो how and what are the rules of improvement of quality. Now the task of implementing improvements is the responsibility of teams within individual departments. अब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम और सेटिंग रूल्स एंड टास्क जो है वो सेट कर देते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना, उनके ऊपर अमल करना, वो उन टीम्स का काम है जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं. Now the plan that the quality improvement team draws up must be accepted and endorsed by senior management. So जो प्लान है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम का, ठीक है, वो एक्सेप्ट भी होना चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट उससे एग्री करके दे शुड बी द वंस हु आर अग्रीइंग एंड गिविंग द परमिशन फॉर इट, और उनकी तरफ से ही ये इंडोर्स किया जा सके, यानी उनकी तरफ से इम्प्लीमेंट हो ये प्लान. Now an important task of quality improvement team is to decide how to specify quality failure and improvement, and this leads into step 3, quality measurement. So important task जो है quality improvement team का क्या है कि they have to decide कि उन्होंने quality failure को कैसे specify करना है और उसमें improvement को कैसे specify करना है, और ये फिर तीसरे स्टेप की तरफ जाता है जो क्वालिटी मेजरमेंट है. Now it is important to be able to measure the current and potential non-conformance in such a manner that it permits objective evaluation and corrective action. So ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि करंटली वो पोटेंशियल जो है वो मेजर किया जा सके, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस मैनरिज्म से किया जाए कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है एवेल्युएशन एंड करेक्टिव एक्शन हो. नाउ द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट वेरी बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस. सो मेजरमेंट के टाइप्स जो हैं वो दो चीज़ों में वेरी करते हैं, दो चीज़ों में डिफरेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग में और एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. And typically they include data from inspection and test reports, statistical data and feedback data from customers. और ये ज़्यादा इंक्लूड किस डेटा पे के ऊपर बेस पे, इंस्पेक्शन की डेटा पे, ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट्स है, स्टेटिस्टिकल डेटा जो कलेक्ट किया गया उसके ऊपर, और फिर वो फीडबैक जो वो कस्टमर से लेते हैं उसके डेटा पे. Now, a major contributor to quality measurement is provided in step 4 by quantifying the cost of quality. So, fourth step जो है वो cost of quality है, और उसको quantify करना या उसको count करना या measure करना, ठीक है, that is also a major contributor. So, the cost of quality consists of such things as the cost of things going wrong, rework, scrap, having to do things again, inspection and testing. So cost of quality कहाँ से आ जाती है, किन चीज़ों में आ जाती है, जब आपको दोबारा से काम करना पड़े, ठीक है, कोई काम आपसे गलत हो जाए, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट या ऐसा मटेरियल वो स्क्रैप में चला जाए, यूजलेस हो जाए, और चीज़ों को दोबारा काम करना, ठीक है, उनको इंस्पेक्ट करना या उनको टेस्ट करना, इन चीज़ों पे कॉस्ट आपकी क्वालिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है. Now, it is important to be able to identify the costs of quality and to put a value on them. फिर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो है चीज़ इम्पोर्टेंट है, विच कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज़ मोर वैल्यूएबल और मोर इम्पोर्टेंट सो दैट इट कैन बी बेयर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन.
Now step 5 जो है वो Crosby steps to quality is the building of quality awareness. So step 5 Crosby के मुताबिक जो है वो ऐसा सिस्टम लेके आना जिसमें quality awareness हो. Now it is necessary to raise the awareness of everyone within the organization of the costs of quality and the need to implement a quality improvement program. और हर एक को एक ऑर्गेनाइजेशन में ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या पड़ रही हैं और उनको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम क्यों इम्प्लीमेंट या क्यों जो है अप्लाई करना पड़ रहा है. Now this requires regular meetings between management and employees to discuss specific problems and means of overcoming them. So इसमें ज़्यादा मेजर क्या चीज़ है कि मैनेजर्स जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉइज़ हैं उनकी रेगुलर मीटिंग्स हों, ठीक है, और वो उसमें डिस्कस कर सकेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से उनको हम ओवरकम कर सकते हैं या हल कर सकते हैं. So information about the quality program needs to be communicated. फिर क्वालिटी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन उनको बताना ज़रूरी है. क्रॉसबी डज नॉट गो फॉर द बिग बैंग अप्रोच टू इंट्रोड्यूसिंग क्वालिटी. सो उसका ये बिल्कुल बिग बैंग अप्रोच नहीं है कि जस्ट हैज़ टू इमीडिएटली एवरीथिंग that immediately everything has to be changed और एक सडन ब्लास्ट से सबको जो है ना चेंजिंग आ जाए. उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्वालिटी को इंट्रोड्यूस कराने का ये तरीका नहीं है कि एक सडन और वास्ट और इमीडिएट डिजास्टरस changing लेके आई जाए. He argues that quality awareness should be low-key and linked to a constant stream of events. So ये एक major event नहीं but low-key होना चाहिए और मुख्तलिफ event से related हो, यानी एक system create कर दिया जाए. Now, once awareness has been raised, it is possible to move on to step 6, corrective action. तो एक दफ़ा जब awareness आ जाती है mistakes की या quality की, तो फिर वो next step पे move कर सकते हैं जो corrective action है. Now, supervisors need to work with staff to eliminate poor quality. और supervisors को staffs के साथ काम करना है किस चीज़ के लिए? poor quality को remove करने या eliminate करने के लिए. Now, a systematic methodology is required to deal with problems. So, एक systematic methodology एक create होती है, ठीक है, जो problems को deal कर सके. Now, Crosby suggests setting up a series of task teams with a carefully constructed agenda for action. So, according to Crosby, उनके मुताबिक ये कि एक ऐसे टीम्स बना देनी चाहिए, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, ठीक है, जिनका एजेंडा जो है वो एक्शन लेना हो उन क्वालिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Now, reports of the task teams should be fed up the chain of command in a regular series of meetings. और उन teams की जो है reports जो है वो regular point of view से meetings में वो अपनी information अपने seniors को provide उन्हें करना चाहिए. Now, to decide which problem to tackle first, he suggests applying the Pareto rule. So, अब ये देखना कि किस problem को पहले approach करना चाहिए तो उन्होंने Pareto rule को जो है इसमें apply किया. Now, this suggests that 20% of the process cause 80% of the problems. The biggest problem needs to be tackled first, followed by the next most important and so on. So, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से 20% जो है वो प्रोसेसेस में और 80% अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाए और बाय स्टेप फिर उससे छोटे फिर उससे छोटे फिर उससे छोटे. नाउ वन वे ऑफ हाईलाइटिंग द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस इज थ्रू स्टेप 7, जीरो डिफेक्ट्स प्लानिंग. अब दूसरा तरीका हाईलाइट करने का, ठीक है, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को, वो स्टेप 7 के थ्रू किया जा सकता है जिसमें जीरो डिफेक्ट्स की प्लानिंग की जा सकती है. Now, he argues that a zero defects program should be introduced and led by the quality improvement team.
which is also responsible for its implementation. So उसके मुताबिक जीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम जो है वो इंट्रोड्यूस उन्हें कराना चाहिए और वही इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इसके ऊपर अमल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों. नाउ क्रॉसबी आर्ग्यूज दैट ऑल स्टाफ शुड साइन अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और प्लेज टू वर्क टुवर्ड्स जीरो डिफेक्ट्स. और उनके मुताबिक हर स्टाफ को जो है ना एक प्लेज साइन करना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए फॉर्मल, जिसमें जीरो डिफेक्ट्स की तरफ वो लीड कर रहा हो. नाउ स्टेप 8 एम्फसाइजेस द नीड फॉर सुपरवाइजर ट्रेनिंग. स्टेप 8 जो है वो किस चीज पे जोर दे रहा है कि सुपरवाइजर ट्रेनिंग होनी चाहिए. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल मैनेजर्स understand their role in the improvement process, and this is carried out through a formal training program. So सबसे ज्यादा important क्या है managers का? To understand their role in the improvement process. Improvement process में उनको role उनका पता हो, and this is carried out through a formal training program. और ये एक formal training program के जरिए इस पे अमल किया जाए. Now this is particularly important for staff carrying out crucial middle management roles. तो उन स्टाफ के लिए स्पेशली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिडिल मैनेजमेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं. नाउ स्टेप 9 इज द होल्डिंग ऑफ जीरो डिफेक्ट्स डे. This is a day-long event that establishes the idea of zero defects and informs employees that there has been a change. और ऐसा डे क्रिएट हो जो जीरो डिफेक्ट डे कहलाए, ठीक है, जिसमें एक पूरा इवेंट इस पूरे दिन में जो है वो एस्टैब्लिश ये करे कि आइडिया जो है जीरो डिफेक्ट्स का वो एस्टैब्लिश करे और एम्प्लॉइज को ये बताया जा सके कि एक चेंज आ गया है. Now, this is essentially a jamboree to highlight and celebrate the work being carried out on quality and to emphasize the management's commitment to it. So, ये ज़्यादा जो है एक सिस्टम जो है ये वो हाईलाइट करने के लिए इसलिए काम किया गया है ताकि it can be carried out जो है क्वालिटी के ऊपर और मैनेजमेंट की कमिटमेंट को एम्फसाइज या बताया जा सके, उस पे जोर दिया जा सके. नाउ इट हैज अ मोर सीरियस साइड विच इज स्टाफ डेवलपमेंट. अब इसका ज्यादा सीरियस साइड जो है वो स्टाफ डेवलपमेंट में आता है. स्टेप 10 इज गोल सेटिंग. सो स्टेप 10 फिर आ जाता है गोल सेटिंग. Once the pledges to work towards zero defects have been made and the idea has been launched on Zero Defects Day, it is important that individual action plans are completed also. So फिर जब एक दफ़ा ये सारा प्रोसेस हो चुका हो जीरो डिफेक्ट्स का, तो फिर इंडिविजुअल्स के जो है वो एक्शन को जो है उनके प्लान्स को कंप्लीट करने का टाइम आ जाता है. ना द गोल्स व्हिच टीम्स सेट देमसेल्व्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल. सो वो जो गोल्स टीम्स अपने लिए सेट करते हैं वो टू द पॉइंट भी होने चाहिए और मेजरेबल भी होने चाहिए. ना गोल सेटिंग लीड्स नेचुरली इनटू स्टेप 11 एरर कॉज रिमूवल. सो गोल सेटिंग जब शुरू हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली एरर कॉज रिमूवल की तरफ जो है वो आगे बढ़ता है. नाउ देयर नीड्स टू बी अ मीन्स एरर कॉज रिमूवल. अब हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि देयर नीड्स टू बी अ मीन्स बाय विच इंडिविजुअल एम्प्लॉइज कैन कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट द सिचुएशंस दैट मेक द प्लेजेस डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. सो एक नीड है, ठीक है, उसमें ये चीज़ के इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि मैनेज उनकी ऐसी सिचुएशंस को मैनेज कर सकें वो, ठीक है, एंड दे हैव टू मेक द प्लेजेस डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. Now, this is best achieved by designing a standard form that goes to the appropriate line manager. So, ये एक बेस्ट वे अचीव कैसे किया जा सकता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट मैनेजर तक पहुंचे. Now, all such forms must receive a reply within a particular time period. And it is important to appreciate those who participate in the improvement exercises. Crosby says in his 12th step, recognition. So, सारे forms जो है वो एक particular time period में complete होने चाहिए, ठीक है, और ये चीज़ important है कि हर एक की participation को जो है recognize किया जाए या उसको recognition दी जाए, ठीक है, जो improvement exercises वो implement कर रहे हैं. So, 12th step recognition हो जाएगा. People, he argues, do not work for money. And once their salary is established, something more important takes over. So, लोग जो है सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते. उनका जब उनकी एक दफ़ा
फिक्स सैलरी उनकी सेट कर दी जाए कि आपको ये सैलरी इस जॉब के लिए मिलनी है, तो उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि वो अचीवमेंट्स अपनी देखना चाहते हैं कि वो क्या क्या हासिल कर सकते हैं. नाउ वी व्हाट स्टाफ नीड इज़ रिकग्निशन फॉर देयर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन. और स्टाफ को ज़रूरी क्या है कि उनकी रिकग्निशन हो जो उन्होंने चीज़ें अचीव की हैं और उनकी कंट्रीब्यूशंस की तरफ. ठीक है. क्रॉस्बी आर्ग्यूज दैट द रिकग्निशन नीड्स टू बी लिंक्ड टू प्रीवियस सेट गोल्स. So previous goals से linked होना चाहिए recognition. The awards can be prizes or certificates. Certificates ये prizes की सूरत में दिए जा सकते हैं. Recognition, not money is what is important. So recognition जो है वो पैसे से ज़्यादा important है staff members के लिए. Now Crosby's step 13 is the establishment of quality councils. Now this is an institutional structure also favored by Juran. So Juran also इस चीज़ को फेवर करते हैं कि step 13 जो है quality councils होने चाहिए. ये एक institutional structure है. Now it is important to bring the quality professionals together to decide how problems can best be tackled. और ये ज़रूरी है कि उस process में जो है quality professionals को इकट्ठा किया जा सके ताकि उनके problems को वो मिल के हल कर सकें. Now, inspectors and quality controllers need a consistent and professional approach to their work. और जो inspectors हैं और quality controllers हैं उनको एक professional approach चाहिए अपने काम करने के लिए. Now, part of the role of the quality council is to monitor the effectiveness of the program. So, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इस क्वालिटी काउंसिल की कि उन्होंने ये चीज़ मॉनिटर करनी है कि इफेक्टिवनेस जो है प्रोग्राम की क्या है एंड टू इंश्योर दैट द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस कंटिन्यूज और कि इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जो है ना मुसलसल चलता रहे. नाउ दिस इज एम्फसाइज्ड इन स्टेप 14, डू इट ओवर अगेन. So the quality program never ends. That means कि quality program कभी भी ख़त्म नहीं होता. Once goals are reached, the program needs to start over again. एक दफ़ा जब goals आप reach कर लेते हैं, program एक circle में दोबारा से start हो जाता है. So Tom Peters is another person also. Is another U.S. national. He is primarily a management theorist whose views on what makes successful organizations have a considerable relevance to quality. So Tom Peters जो है वो भी US national है और basically वो management theorist है. ठीक है. theories management की वो बनाते हैं and what makes successful organizations उनके point of view से have considerable relevance to quality. So quality से relevance होता है उनका. Peters graduated in engineering and business and spent the early part of his career like Crosby in the United States Navy. So उन्होंने graduate किया engineering में और business में and then उन्होंने अपना career का जो early part था वो Crosby की तरह Navy में गुजारा, serve किया United States Navy में. So he was a principal at the consultants McKinsey and Co. when he began researching his most famous book, In Search of Excellence, written by Robert Waterman, which was published in 1982. So at that time, McKinsey and Co. company consultants के वो principal थे उस वक़्त, and when he began researching, जब उन्होंने अपनी most famous book जो है In Search of Excellence जो है रॉबर्ट वाटरमैन ने जो लिखी उसको रिसर्च करना शुरू किया जो पब्लिश हुई थी 1982 में. Now in it they researched the secrets of the United States most successful organizations. So उन्होंने USA की जो most successful या most कामयाब organizations थी उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, उनके secrets देखने शुरू किए. Now his second book, A Passion for Excellence, written with Nancy Austin, was published in 1985. उनकी second book जो थी A Passion for Excellence जो उन्होंने Nancy Austin के साथ मिलकर 85 में फिर publish की, उसको लिखा. He has subsequently published a string of successful books, including Thriving on Chaos 1987 and Liberation Management 1992. और उसके बाद वो उनकी यानी एक मुसलसल बुक्स वो पब्लिश करते रहे जो बहुत सक्सेसफुल रहे. ठीक है. थ्राइविंग ऑन केयास दैट मींस 87 में और लिबरेशन मैनेजमेंट जो है उन्होंने की 92 में पब्लिश.
Now, in a passion for excellence with co-author Nancy Austin, Peter identifies leadership as being central to the quality improvement process. So, passion of excellence में उन्होंने ये चीज़ identify की कि leadership जो है वो quality improvement process में बहुत important है. Now, importantly, they consider that the term management should be discarded in favor of leadership. So, management का term जो है वो leadership management की जगह leadership का word use होना चाहिए. For them, the leader was to be a facilitator and the person with vision motivating the rest of the team. So, उसमें लीडर जो है वो पर्सन है जो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है और विजन प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है अपने टीम को, ठीक है, क्वालिटी की. Now they championed hands-on leadership styles and characterized it with their famous managing by walking about MBWA. So उन्होंने हैंड्स ऑन यानी जो लीडरशिप अप्लाई चैंपियन किए उन्होंने, स्टाइल्स जो थे वो कैरेक्टराइज किए उन्होंने अपनी फेमस मैनेजिंग बाय वॉकिंग अबाउट से. And such leadership styles enable leaders to keep in touch with customers and staff, and they believe that it leads to innovative and creative ideas. So इनके मुताबिक जो है वो leaders को या management जो जिनको उन्होंने leadership का नाम दिया, they have to stay in touch with their customers और staff के साथ, और वो उससे फिर innovative और creative ideas create होते हैं. Now Peters और Austin call MBWA the technology of the obvious and believe that the effective leader, by practicing MBWA, is able to pursue the following important characteristics. So, जो भी लीडर MBWA को फॉलो कर रहा है या परस्यू कर रहा है वो फिर important characteristics उसमें उसके आ जाएंगे. listening to staff, ठीक है, which shows that he or she cares, यानी स्टाफ की को सुनना, ठीक है, ये उनकी केयर शो होती है. teaching and transmitting values, वैल्यूज को ट्रांसमिट करना या टीच करना. facilitating and giving on the spot help and advice, और अपने स्टाफ को facilitate करना, help करना और उनको advice देना. So Peters is well known for his views on customer orientation. So ज़्यादा वो customer orientation के लिए जाने जाते हैं. Now in Thriving on Chaos, he describes 12 attributes on traits of the quality revolution that all organizations need to pursue. So Quality on Chaos में उन्होंने 12 एट्रीब्यूट्स ऐसे बताए जिसमें उनके मुताबिक क्वालिटी रेवोल्यूशन जो है हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए. ना दीज ट्रेट्स आर, नंबर 1, अ मैनेजमेंट ऑब्सेशन विद क्वालिटी. मैनेजमेंट की ऑब्सेशन होनी चाहिए क्वालिटी के साथ. पीटर स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन टू बैक अप द इमोशनल कमिटमेंट टू क्वालिटी. एंड फॉर एग्जाम्पल, हैविंग द नंबर्स ऑफ रीवर्क्स, नेवर वॉकिंग पास्ट शॉर्टी गुड्स. सो रीवर्क्स ना हो उसमें और चीप मटेरियल का स्टफ ना हो. सेकेंड वुड बी पैशनेट सिस्टम्स. ठीक है, फॉर पीटर्स फेलियर इज इनवेरेबली ड्यू टू पैशन विदाउट सिस्टम और सिस्टम विदाउट पैशन. ही बिलीव्स दैट बोथ सिस्टम एंड पैशन आर नेसेसरी. तो उनके मुताबिक सिस्टम और पैशन दोनों ही जरूरी हैं काम के लिए. देन मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी. This is an essential element. It should begin at the outset of any quality program and should be carried out by the participants themselves. और क्वालिटी प्रोग्राम की मैनेजमेंट जो है एसेंशियल जो है वो पॉइंट ये होना चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स इसको खुद हैंडल करें. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम्स की. सो देन क्वालिटी इज रिवॉर्डेड. Peters believes that financial incentives can boost quality improvement, और financial incentives अगर दिए जाए स्टाफ या एम्प्लॉइज को तो वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी हो सकती है. Everyone is trained for quality. Then Peters believes that every person in an organization should be extensively trained. हर एक को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. Training should include cause and effect analysis, statistical process control and teamwork. तो ट्रेनिंग में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. cause and effect analysis होनी चाहिए, ठीक है, टीमवर्क होनी चाहिए और statistical process control सिखानी चाहिए, उसके लिए ट्रेन करना चाहिए. Then multifunction teams, quality circles, cross-functional teams or corrective action teams should be introduced. Then small is beautiful. Peters does not believe that there is such a thing as a small improvement. All improvements are significant. So उनके point of view से छोटी improvements नहीं हो सकती, हर improvement जो है वो important है.
create endless Hawthorne effects. He believes in getting things going with new goals, new themes and new events. नए events, नए goals के साथ हर चीज को चलना चाहिए. Then parallel organizational structure devoted to quality improvement. This he describes as the creation of shadow quality teams and emphasizes that it is a route through which hourly paid workers can progress. So ये उनके point of view से जिनको घंटे पे पे किया जा रहा है वो लोग इस चीज से progress ले सकते हैं parallel organization structure से, ठीक है, जिसमें quality improvement है. उसके बाद everyone is involved. Suppliers, distributors and customers are all part of the organization's quality process. Joint improvement teams should be formed. Then when quality goes up, costs go down. जब quality बढ़ती है तो cost नीचे चली जाती है. Quality improvement is the primary source of cost reduction. So quality improvement, cost reduction के लिए बहुत helpful है. Quality improvement is a never-ending journey. All quality is relative. So हर चीज क्वालिटी की वो इम्प्रूवमेंट जो है वो एक नेवर एंडिंग है, वो मुसलसल चलता रहता है वो सिस्टम, ठीक है, और हर चीज इम्पोर्टेंट है. एवरी डे ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर ईदर गेटिंग रिलेटिवली बेटर और वर्स बट नेवर स्टैंड स्टिल. सो या तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेहतर होती जाती हैं या खराब होती जाती हैं, बट वो एक मुसलसल स्टैंड स्टिल पे कभी नहीं रहती. Now Kuru Ishikawa was born in 1915. He was another one of the gurus. He was a graduate in engineering from Tokyo University. He obtained his doctorate in engineering and became professor at Tokyo University in 1960. So he was awarded the Deming Prize for his writings on total quality control. His most famous book, What is Control? Quality Control, The Japanese Way, was published in 1985. He died in 1989. He is most famous for his work on quality circles and was a pioneer of the quality circle movement in Japan and in the early 1960s. So उनका ज़्यादा famous वो चीज़ किस चीज़ के थे जो जापान में quality circles पे काम हुआ, and वो quality circle movement जो जापान में start हुआ उसके pioneer थे, वो उन्होंने start किया था 1960s में. He is also well known for his statistical techniques. अपनी statistical techniques के लिए भी बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं वो. One major characteristic of Japanese company-wide quality control is the quality circle. So, main characteristic जो है Japanese का जो quality control circle का जो है वो company-wide quality control है. Quality circle is probably the most well-known Japanese contribution to quality management. So ये एक सबसे बेस्ट वेल नोन है क्वालिटी सर्कल जो जापानीज ने कंट्रीब्यूट किया. नाउ दिस क्वालिटी सर्कल मूवमेंट एसोसिएटेड विद इशिकावा started in 1962 in the Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation. वहाँ से ये शुरू हुआ. It spread to banks and retailing and has been exported worldwide. So ये banks और retailing में भी गया और ये worldwide export होना शुरू हो गया quality circle. Success in the West has not been so extensive as in Japan. However, although even there it has been shown to have limitations. So even Japan में भी limitations थी, लेकिन इस चीज़ की success जो है वो West में इतनी नहीं थी जितनी Japan में थी. Now in Japan, a quality circle is typically a voluntary group of usually 5 to a dozen staff from all the same workshop. So quality circle जो है एक voluntary group है, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा जो है staff, ठीक है, जो एक ही workshop से हैं. They meet regularly and are led by a foreman, team leader or one of the workers. Their aim is to contribute to the improvement and development of the enterprise and to build a happy workforce. So वो एक workforce खुश workforce create करना चाह रहे हैं, working environment अच्छा create करना चाह रहे हैं और improvement and development जो है उस company enterprise की उसके लिए काम करते हैं. Now quality circles are about using human capabilities to the full, और human capabilities को जितना full use किया जा सकता है वो quality circles explain that. Now these aims are broader than is consistent with a narrow definition of quality as often used in the West. So ये aims जो है वो ज़्यादा broad है निस्बतन जो West में use किए जा रहे हैं. So typically members of quality circles master statistical quality control and related methods and utilize them to achieve significant results in quality improvement, cost reduction and productivity and safety.
सो टिपिकली जो मेंबर्स हैं क्वालिटी सर्कल के वो किस चीज़ पे मास्टर हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पे मास्टर हैं वो, और उनके मेथड्स जो हैं वो ऐसे हैं यूटिलाइज करने के लिए कि वो सिग्निफिकेंट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के रिजल्ट्स के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और सेफ्टी इश्यूज के लिए. दे आर ऑल थॉट द 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल: Pareto charts, cause and effect diagrams, stratification, check sheets, histograms, scatter diagrams and Shewhart's control charts and graphs. So, उनको ये सातों tools सिखाए जाते हैं. All members of the circle engage in self and team development. और ये सब जो है self development में अपनी बेहतरी, अपनी improvement and team की improvement के लिए काम करते हैं. Now they receive no direct financial reward for any improvement they make. तो उनको कोई direct extra pay नहीं किया जाता इस improvement के लिए. So even in Japan, many quality circles have founded. This is usually because of lack of management interest or the opposite, excessive intervention. So Japan में जो है quality circles वहाँ से यानी शुरू हुए, but ज़्यादा जो है अगर वो कामयाब नहीं हुए तो वो इसलिए कि या तो lack of management है, उनका interest नहीं था management का, या फिर उन्होंने ज़्यादा दखल अंदाजी की उसमें. Now however, many more have been successful. Many commentators, include Philip Crosby, have warned against the fashion for quality circles as a cure-all for pure staff motivation or inadequate quality and productivity in either manufacturing or service industries. So, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ के लिए क्या थी, उसको सक्सेस में लाने के लिए कि कॉम्पिटिटर्स जो है जिसमें फिलिप क्रॉस्बी भी पार्ट प्ले करते हैं, हैव वार्न के क्वालिटी सर्कल्स का जो है वो क्यूर ऑल और पुअर स्टाफ मोटिवेशन के लिए, inadequate क्वालिटी के लिए, प्रोडक्टिविटी इन ईदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज. And so Joseph Juran has gone further and expressed doubts on their effectiveness in the West. So वहाँ पे तो obviously ये successful रहा, लेकिन उनको ये doubt है कि West में ये चीज़ effective होगी. So he believes that the industrial culture is different. वहाँ पे different है culture. And in Western approaches to quality improvement, the quality circle is replaced by teamwork. So क्वालिटी सर्कल का सिस्टम जापान में मे बी सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन वेस्ट में, यूएस या यूरोपियन कंट्रीज में नहीं हो सकता, बिकॉज एक तो इंडस्ट्रियल कल्चर डिफरेंट है एंड अप्रोचेस जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के वो क्वालिटी सर्कल को रिप्लेस करती है टीम वर्क, और इस वजह से वो डिफरेंट हो जाता है. So students, that was about it with our quality circles now. In the next lecture, we'll be studying further about them, and I'll give you more detail. I hope you understood it easily. So take care. Good day.